نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے اور رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور رمضان المبارک کے اندر ایک خاص عبادت بھی رب نے عطا فرمائی ہے، وہ ہے نماز تراویح کی صورت میں۔ آج میں نے چاہا کہ نماز تراویح کے تعلق سے اپنے ناظرین کے سامنے چند باتیں عرض کروں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے بخاری شریف میں اپنے ساتھ لے کر حاضر ہوں۔ آئیے چند احادیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم پڑھتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھی رات کو نکلے، فصلی فی المسجد، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، وصلی رجال بصلاتہ، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی جماعت کرائی، یعنی نماز تراویح پڑھائی۔ فاصبح الناس فتحدثوا، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے باتیں کی، یعنی جتنے لوگ رات کو حاضر تھے مسجد میں، جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی، انہوں نے ان لوگوں کو بتانا شروع کیا جو لوگ رات کو نماز کے اندر موجود نہیں تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، فاجتمع اکثر منہم، تو ان سے بھی زیادہ لوگ دوسرے دن حاضر ہو گئے۔ فصلوا معہ، تو تمام نے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ فاصبح الناس فتحدثوا، جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں نے باتیں کی، جن کو پتہ نہیں تھا ان کو بھی بتایا۔ فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ، تیسری رات کو اور زیادہ لوگ مسجد میں آ گئے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے۔ فصلی، تو آپ نے نماز پڑھی۔ فصلوا بصلاتہ، آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں باقی لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ فلما كانت اللیلۃ الرابعہ، جب تیسری رات آئی، عجز المسجد عن اہلہ، تو نمازیوں سے مسجد کھچا کھچ بھر چکی تھی، یعنی مسجد عاجز آ گئی، نمازی مسجد کے اندر سما نہیں سکتے تھے۔ حتی خرج لصلاۃ الصبح، اب چوتھے دن یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لائے، یعنی 3 دن تک آپ آتے رہے اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھاتے رہے۔ جب چوتھا دن ہوا تو صحابہ کرام اتنی کثیر تعداد میں مسجد میں پہنچ چکے تھے کہ مسجد میں سما نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن تشریف نہ لائے، اور صبح کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے۔ جب نماز میں پہنچے، فلما قضى الفجر، جب صبح کی نماز آپ نے ادا فرمائی، اقبل علی الناس، آپ لوگوں کے سامنے ہوئے، آگے بڑھے۔ فتشہد، پھر آپ علیہ السلام نے خطبہ شہادت دیا۔ قال اما بعد، پھر آپ نے اما بعد کہنے کے بعد فرمایا، فإنه لم يخفى علی مکانکم، اے میرے غلاموں، آپ کا حاضر ہونا مجھ پر مخفی نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ آپ کثیر تعداد میں پہنچ چکے ہو۔ ولکنی خشیت ان تفرض علیکم، لیکن میں ڈرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ آپ پر کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، یعنی میرے دوام اختیار کرنے سے، لگاتار آنے سے کہیں آپ پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ فتعجزوا عنہا، پھر آپ اس سے عاجز آ جائیں، فرض ادا نہ کریں۔
آقا नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अपनी उम्मत के साथ शफ़क़त देखो कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे खौफ था कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए और तुम इस फ़र्ज़ को अदा ना कर पाओ, अगर अदा ना करोगे तो गुनहगार हो जाओगे, बस मैं इस खौफ की वजह से ना आया। अब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद भी हालत यही रही, इसी तरीके पर नमाज होती रही कि लोग मुतफर्रिक यानी मुनफरद तन्हा तन्हा पढ़ते रहे या कभी कोई जमात से भी पढ़ लेते। और यही आलम और यही हालत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी रही कि लोग तन्हा तन्हा नमाज़ पढ़ लेते या कभी किसी इमाम के पीछे भी सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अदा करते हुए पढ़ लिया करते थे। अब जबकि आया दौरे खिलाफत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो आपके भी इब्तिदाई दौरे खिलाफत के अंदर इसी तरीके से नमाज तरावी होती रही, यानी तन्हा तन्हा भी पढ़ लेते या कहीं कोई जमात होती तो अदा कर लेते अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। जबकि एक दिन ऐसा हुआ, सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अन्नहु काला खरजतु मअ उमर इब्न अल-खत्ताब, आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं निकला हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, लैलतन फ़ी रमज़ाना, एक रात को मैं निकला रमज़ान में, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, फ़ैज़न्नासु अवज़ाउहुम मुतफ़र्रिक़ून युसल्ली अर्रजुलु लिनफ़्सिही, तो फरमाते हैं कि हमने लोगों को देखा मस्जिद के अंदर कि तन्हा तन्हा कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई आदमी अपनी नमाज़ पढ़ रहा है तन्हा, व युसल्ली अर्रजुलु फ़युसल्ली बिस्वलातिही अर्रहतु, और कोई आदमी पढ़ रहा है तो उसके साथ कोई गुरो नमाज़ पढ़ रहा है। फ़क़ाल उमर, जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हालत देखी तो आपने फरमाया, इन्नी अरा, मेरी राय है, मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहता हूँ, लव जमाअतु हाउलाई अला कारिइन, कि अगर इन तमाम को जमा कर दिया जाए एक कारी के साथ, यानी एक इमाम की इब्तिदा में इन तमाम को जमा कर दिया जाए, लव जमातु हाउलाई अला कारिइन वाहिदिन लकाना अमसल, आप फरमाते हैं कि अगर एक ही कारी पर इनको जमा कर दिया जाए तो ये बेहतर होगा। सुम्मा अज़मा फ़जमाअहुम अला उबई इब्न काब, आप फरमाते हैं कि फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा फरमाया और तमाम को उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इक्तिदा में जमा कर दिया। सुम्मा ख़रजतु मअहु लैलतन उख़रा, फिर जनाब अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक दूसरी रात में निकला, वन्नासु युसल्लूना बिस्सलाति कारिइहिम, तो हमने देखा कि लोग अपने कारी के पीछे यानी अपने इमाम की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे हैं। क़ाला उमर निअमल बिदअतु हाज़िही, जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो आप फरमाने लगे, निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है, यानी तमाम लोग इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं एक ही कारी के पीछे और कुरान मजीद की तिलावत को सुन रहे हैं। सुबहान अल्लाह। पता चला कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज तरावी की बाकायदा जमात को रिवाज दिया। फिर जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद दौरे खिलाफत आया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो लोग इसी तरीके से जमात के साथ नमाज़ पढ़ते रहे। सहाबाए किराम जमात के साथ एक इमाम के पीछे जमा होकर इकट्ठे होकर नमाज तरावी पढ़ते रहे। और आपके ज़माने के बाद जब आया दौर हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का दौर खिलाफत, तो उस वक्त भी इसी तरीके से लोग नमाज अदा करते रहे एक ही कारी के पीछे। तो एक दिन हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बाहर निकले, रमज़ान का महीना था, रमज़ान की रात थी, तो लोगों को देखा, मलाहिज़ा फरमाया आपने कि लोग मसाजिद में जमा हैं और नमाज तरावी हो रही है, आइम्मा किराम कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहे हैं और हर मस्जिद के अंदर कंदीलें जली हुई हैं, मस्जिद रोशनी में हर मस्जिद रोशनी में जगमग जगमग करती हुई नज़र आ रही है। आप मसरूर हो गए, आप बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ फरमाते हैं। नव्वर अल्लाहु कब्र उमर,
अल्लाह उमर की कब्र को रोशन करे। मौला अली दुआ फरमाते हैं, अल्लाह उमर की कब्र को रोशन करे, कमा नव्वरा मसाजिदना बिल कुरान, जैसा कि उमर ने हमारी मस्जिदों को कुरान से रोशन किया है। सुबहान अल्लाह। अब साबित हुआ कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 रातें नमाज तरावी पढ़ाई बाकायदा जमात के साथ। चौथी रात को आप ना तशरीफ़ लाए। और यह भी साबित हुआ कि जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकायदा नमाज तरावी की जमात को रिवाज दिया और हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम मुकर्रर फरमाया और इमाम के पीछे लोगों ने नमाज तरावी अदा करना शुरू की। और ये भी साबित हुआ कि इस अमल से हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खुश हुए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुआ दी कि अल्लाह उमर की कब्र को रोशन करे, जैसा कि उमर ने हमारी मसाजिद को रोशन कर दिया है कुरान अज़ीम के साथ। लेकिन बुखारी शरीफ की अहादीस तय्यबा में एक चीज़ की वजाहत नहीं है कि जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी 3 दिन तक पढ़ाई तो कितनी रकातें नमाज तरावी की पढ़ाई। और ये भी बुखारी ने नहीं बताया कि अब्दुल्ला इब्न उबई ने जब नमाज तरावी की जमात कराई तो जनाब कितनी नमाज तरावी की रकतें पढ़ाई। इन तमाम चीज़ों के सबूत के लिए आइए मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा पढ़िए। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर एक रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकअह वल वित्र, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में 20 रकत नमाज तरावी पढ़ा करते थे और वितर पढ़ा करते थे। अब मिरकात शरीफ शरह मिशकात सफ़ा नंबर 194 पर है, फरमाया कि सहाबाए किराम का इस बात पर इजमा है अन्नत तरावी है 20 रकअह, कि तरावी की नमाज 20 रकत है। और सहाबा का इजमा क्यों ना हो, जबकि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज पढ़ी थी। और ये नमाज पढ़ना इस बात की दलील था कि वो जानते थे कि हमने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में 20 रकत नमाज तरावी पढ़ी है, इसीलिए तो सहाबाए किराम का इजमा साबित है। फिर जबकि अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज बाजमात पढ़ाई उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर, तो कितनी रकत पढ़ाई। इस सवाल के जवाब के लिए गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम इब्न तैमिया के पास चाहिए और पूछ लीजिए कि है गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम इब्न तैमिया, आप ही बता दीजिए कि जनाब उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी रकातें तरावी की पढ़ाई थी। तो जनाब मलाहिज़ा फरमाइए, इब्न तैमिया अपने फतावा इब्न तैमिया के अंदर जिल्द नंबर 23 और सफ़ा नंबर 112 पर तहरीर करते हैं, उबई इब्न काब के बारे में ये साबित शुदा है। फरमाते हैं कि उबई इब्न काब के बारे में ये साबित शुदा है कि कान यक़ूमु बिन्नासि 20 रकअह फ़ी क़याम रमज़ान, कि आप 20 रकत नमाज तरावी रमज़ान में पढ़ाया करते थे। अब साबित हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 3 रातें नमाज तरावी पढ़ाई तो 20-20 रकत ही नमाज तरावी पढ़ाई। सहाबाए किराम का भी इस पर इजमा है कि नमाज तरावी 20 रकत है। और उबई इब्न काब से भी साबित हो गया कि आपने भी नमाज तरावी 20 रकत ही पढ़ाई है। फिर ये 8 रकत नमाज तरावी पढ़ने वाले लोग अब ये कहाँ से 8 रकत लेकर आए हैं। आइए ये भी सुन लीजिए कि बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, जिस हदीस पाक को पढ़कर उन्हें सख्त मुगालिता हुआ और मुगालिते का शिकार होकर वो एक गुमराही के गड़े में गिर गए, समझ न सके। अब हदीस पाक मुलाहिज़ा फरमाइए। इस हदीस पाक के रावी हैं जनाब अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप रवायत फरमाते हैं कि मैंने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, कैफ़ कानत स्वलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाइए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी।
تو सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मा काना यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिहा अला 11 रकअतन, फरमाती है मा काना यज़ीदु, आप ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं फरमाते थे, फ़ी रमज़ान, रमज़ान में, वला फ़ी गैरिहा, और ना रमज़ान के गैर में, अला 11 रकअतन, 11 रकतों पर। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान 11 रकतों पर ज़्यादती ना फरमाते थे। तो इस हदीस पाक को जब उन लोगों ने पढ़ा जो आज भी 8 रकातें नमाज तरावी की पढ़ने पर इसरार करते हैं, तो उन्होंने इस हदीस से गलत इस्तेदलाल किया और उन्होंने कहा कि जो 11 रकतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, इनमें 8 रकत नमाज तरावी है और 3 रकात नमाज वितर, जबकि हदीस पाक के अल्फाज बता रहे हैं मा काना यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिहा, कि ना रमज़ान में ज़्यादा फरमाते थे, ना रमज़ान के अलावा दूसरे महीनों में दूसरी रातों में ज़्यादा फरमाते थे 11 रकतों पर। तो साबित हुआ कि इस हदीस पाक के अंदर उस नमाज का ज़िक्र है जो रमज़ान में भी पढ़ी जाती है और रमज़ान के अलावा भी पढ़ी जाती है, जबकि नमाज तरावी सिर्फ रमज़ान में ही पढ़ी जाती है, रमज़ान के अलावा किसी दूसरे महीने में नहीं पढ़ी जाती। तो वो कौन सी नमाज है जिसका ज़िक्र इस हदीस पाक में है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी पढ़ा करते थे 11 रकतें और रमज़ान के अलावा में भी पढ़ा करते थे 11 रकतें। तो सुनो, मुगालते का शिकार मत बनो। वो नमाज तहज्जुद है जो कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी 8 रकात नमाज तहज्जुद और 3 रकत नमाज वितर पढ़ा करते थे। लिहाजा साबित हुआ कि नमाज तरावी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 20 रकात साबित, इजमा सहाबा से भी 20 रकात साबित, और जनाब इब्न तैमिया के फतवे के मुताबिक भी 20 रकत नमाज तरावी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को रमज़ान उल मुबारक के फैज़ान से फैज़याब होकर नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह, इस रमज़ान को हम तमाम के लिए बाइस बरकत, बाइस इज़्ज़त, बाइस रहमत, बाइस बख्शिश और बाइस हिफ्ज़ जानो ईमान और हिफ्ज़ इज़्ज़त बना दे। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमारी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमा। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।